Good morning, everyone. This is Renu Tamboli from Lial Public School, your teacher. So first of all, students, a very warm welcome to you in today's online class. And yes, I'm Renu, your maths teacher, and I will teach you maths. Okay? And yes, I hope you all are fit and fine and feeling happy, healthy at your home. Okay? So let's get started our today's online class. So students, as I told you, today we will start our very first unit in our math subject, which is numbers. Okay, in this unit, we will read place value, face value and number names. So let's go through with number one topic, numbers. Okay, numbers क्या होते हैं? What are numbers? Numbers के बारे में जानेंगे. Okay, now you can see on your screen, it's a cover page of your maths book, Wow Maths. Okay, and I hope you all have purchased this book from market. आपको market से ये book purchase करनी है. Okay, students. So let's go through with whiteboard to understand about numbers. Yes. What are numbers? Numbers क्या होते हैं? A number is a mathematical object used to count like 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स का यूज हम करते हैं बेटा, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं नंबर्स, जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं. सपोज कि आपके पास बेटा एक ना चॉकलेट बॉक्स है और आपको ये फाइंड करना है कि उस बॉक्स में नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है. तो क्या करेंगे हम? व्हाट शुड वी डू? एग्जैक्टली वी शुड डू काउंट दैम. हमें उन्हें काउंट करना है. ओके, और काउंट करने के लिए हम किनका यूज करते हैं बेटा? नंबर्स का यूज करते हैं. अंडरस्टूड? नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट. काउंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं. ओके, एंड यस, आवर फर्स्ट यूनिट इज आल्सो बेस्ड ऑन नंबर्स. अपनी मैथ्स की जो फर्स्ट यूनिट है वो नंबर्स पे ही बेस्ड है. Clear? Now moving to the next point, place value. Place value क्या होती है? Place value is the value of each digit in a number. Place value क्या होती है? हर एक नंबर का क्या होता है? डिजिट की पोजीशन को बताता है. Value of each digit in a number. Okay? Place value numbers के पोजीशन को बताता है, डिजिट के पोजीशन को, वैल्यू को बताता है. लाइक फॉर एग्जांपल 350. 350. Yes. Now, yes. Example क्या है? 350. So students, as you can see on your screen, 3 is here at the place of 100. जो 3 है वो किसके प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर है. क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट 5. 5 कौन से प्लेस पर है? 5 is here at the place of tens and 0 is at the place of ones. Clear? अब H T O, what is the meaning about that? कि H का मतलब क्या होता है? T और O का. Here H represents hundreds. H यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? hundreds को. ओके. T represents tens. O represents ones. नंबर्स चैप्टर में बेटा आपको 100, टेंस, वंस ये पूरे यूनिट में आपको देखने को मिलेगा. एच का मतलब होगा हंड्रेड्स. ओके, और टी का मतलब होगा टेंस. ओ दैट मीन्स वंस. ओके, नाउ कमिंग टू द हाउ टू वी रीड 3 डिजिट नंबर्स. हम 3 डिजिट नंबर्स को कैसे रीड कर सकते हैं? टू रीड अ 3 डिजिट नंबर, first read the 100 place and then read the last 2 digits together. Then read the last 2 digits together. Okay,
अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप 3 डिजिट्स नंबर्स को कैसे रीड करोगे, हाउ टू वी रीड 3 डिजिट्स नंबर। ओके, लाइक आपको सबसे पहले जो हंड्रेड्स प्लेस पर है उस डिजिट को रीड करना है। आफ्टर दैट यू कैन रीड लास्ट 2 डिजिट्स नंबर टुगेदर। क्लियर? लाइक हम एग्जाम्पल क्या ले रखा है हमने 350, तो 350, 50 को हमने क्या किया, साथ में रीड किया है। पहले 100 प्लेस वाले डिजिट को रीड करना है, okay, and after that read last 2 digits number together. Hope you understand about how to we read 3 digits number. To read a 3 digit number, first read the 100 place, like 100 place पर है यहाँ पे 3, and then read the last 2 digit number together. Here last 2 digit number is 50. Clear to you? And here I am also repeating again कि H यहाँ पे represent कर रहा है hundreds को, T tens and O ones. Clear? And yes, one more thing is here noted students कि देखिए जो 100 place पे digit होगा उसके साथ में हमेशा 20 आएंगे। यहाँ पे example 300, अब 3 के पास देखिए बेटा कितने 0 आएंगे, 20। क्यों? क्योंकि 100 प्लेस पर है। ओके, नाउ कमिंग टू द 5 has 1 0. Why? Because 5 at is here tens place, क्योंकि 5 यहाँ पे tens place पर है। tens place पे जो नंबर होता है उसके पास हमेशा 1 0 आएगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू द वंस प्लेस डिजिट, 1 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसके पास कुछ भी नहीं आएगा, जो डिजिट है वही का वही। यहाँ पे 0 लिखा है वंस प्लेस पे तो आपको 1 से लिखना है। ओके, 0 देखिए 2 0 किसके साथ आएंगे, 100 प्लेस वाले नंबर पे। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके साथ हमेशा 1 0 आएगा, और वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगा, सपोज कि अगर 1 है 2 है 3 है तो एज इट इज सेम डिजिट वही आएगा, कोई 0 नहीं आएगा उसके साथ। क्लियर? Okay, now students moving to the our book exercise example. Yes, now students as you see on your screen it's example of your unit number 1. आपके unit number 1 का ये example है। पूरी unit बेटा बेस्ड है इसी एग्जाम्पल पे। आपको पूरे यूनिट में नंबर 1 नंबर्स यूनिट में यही एग्जाम्पल्स और जो पिक्चर्स आपको देखने को मिल रही है स्क्रीन पे, ऐसे आपको पूरे यूनिट में देखने को मिलेंगे। ओके, हियर वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट 100, tens and ones according to the pictures. Okay, so number 1 picture you can see on your screen, it's a picture of square plate shape, है ना। प्लेट शेप की आपको पिक्चर दिख रही है। प्लेट शेप पिक्चर होगी तो बेटा ये पिक्चर इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 100 को। क्लियर? और स्टिक्स पे आते हैं। स्टिक्स जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये स्टिक्स रिप्रेजेंट करेगी टेंस को। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेपरेट बॉक्सेस, ये जो सेपरेट बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू ऑफ वंस। क्लियर? क्या कहा मैंने, जो स्क्वायर शेप प्लेट है उसे काउंट करना है हमें। जितने भी ये ऐसे स्क्वायर शेप प्लेट्स दे रखी होगी उनको आपको काउंट करना है और 100 प्लेस पे आपको डिजिट लिखना है। क्लियर? नाउ स्टिक्स, ये जो स्टिक्स है इन्हें हम काउंट करेंगे और लिखना है हमें टेंस प्लेस पर। और जो सेपरेट बॉक्स अगर दे रखे होंगे लाइक दिस तो आपको उन्हें काउंट करके वंस प्लेस पे वैल्यू लिखनी है, डिजिट्स को लिखना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर शेप दे रखा है तो ये हुआ 100, 1 ही शेप ड्राइंग है तो 100। अगर यहाँ पे 2 शेप बनी हुई होती, ऐसी प्लेट्स बनी होती तो वो 200 हो जाता। अब देखिए ये है ना सेपरेट, ये सॉरी ये कितने हैं बेटा, स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। There are 7 sticks as you can see on your screen, 7 sticks है तो कितनी वैल्यू होगी, 7 लिखना है हमें। कहाँ पे, टेंस वाले प्लेस पे हमें 7 लिखना है। Now coming to the separate boxes, separate boxes देखिए बेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। So 8 ones कहाँ लिखना है, at the ones place। Clear? समझ में आया? अब देखिए जो 100 प्लेस वाला है
ये आपको ऐसी पिक्चर आपको ध्यान में रखना है, और जो टेंस प्लेस वाले होंगे स्टिक्स को आपको नोटेड रख के आपको माइंड में रख के नोट करना है, और जो सेपरेट है इनको भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ये वंस प्लेस पे वैल्यूज लिखनी है. ओके, नाउ कमिंग टू द our book exercise part. Number 1 exercise is here. You can see, write the numbers and their number names. Students, एक बात है ना बेटा, ध्यान में हमें रखना है कि हर एक टॉपिक एक्सरसाइज से रिलेवेंट जो भी एग्जाम्पल होगा वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसके बाद में ही हम बुक एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. क्लियर? अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था about this shapes like square shapes, sticks and separate boxes के बारे में बताया है. What we are going to do in this exercise, we just count these shapes and write there at that proper place. आपको इनके proper place पे आपको इन सबको लिखना है according to the shape. Number 1, it's a square shape. स्क्वायर शेप किसे रिप्रेजेंट करेगा, 100 प्लेस को. सो यहाँ पे 1 क्या होगा बेटा, 100 होगा ना, 100 प्लेस पे आपको स्क्वायर शेप लिखनी है. स्क्वायर शेप कितना है, 1. तो सो राइट हियर 1. नाउ कमिंग टू द स्टिक्स, 1 2 3 4. फर्स्ट ऑफ ऑल you just count them and write there at the proper place. 4 sticks are there, so write 4 at the place of tens. Okay. Now next, separate box. Separate box कितने हैं, 1 2 3 4. There are 4 separate boxes, so 4 ones place पर लिखना है. Clear? अब क्या करना है, हमें इनको नंबर नेम्स में लिखना है. नंबर नेम्स 144 है ना. So write here 1 ONE 100 HUNDRED 100. 40 FORTY 40. अब हमें बीच में डैश लगाना है. 44 FOUR 4 FOUR 4. Clear? Hope you understood very well about this exercise. क्या किया है हमने, first of all we need to count these shapes. After that you can write according to their numbers of the shape at their proper place. Okay. एंड बाद में आपको क्या करना है, बाद में इनको नंबर नेम्स में आपको लिखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेड हियर नंबर 1 स्क्वायर शेप 1. सो राइट हियर 1 at 100 place. And how many sticks are there, count them, 1 and 2. So write 2 at the tens place. And 1 separate box is here, so 1 हमें लिखना है 1's place पर. Understood? Now number names में change करना है. 100 HUNDRED 100. 20 TWENTY 20 dash 21 ONE 1. Understood बेटा, समझ में आ रहा है आपको? And yes, always remember one thing is that कि maths it's all about practice. maths अपने practice पे ही depend है. जितनी हम हाथों से practice करेंगे, sums को solve करेंगे, maths उतनी ही हमारी strong होगी. Clear? So students, here you can see question number C, D, E. It's for you. ये आपके लिए है. Do it, do practice at your home. And yes, if you have any query, problem about this chapter, exercise number 1, you can ask me without any hesitation. Okay? And yes, one more thing कि बेटा हम exercise number 1 अभी हमने इस session में online video class में अभी की है. After that, we will be come to chapter page number 11. आपके मैथ्स की यूनिट नंबर 1 का जो पेज नंबर 11 है वो फर्स्ट पेज है. तो वो हम क्या करेंगे, we will be discuss about that page in our next class. Till then, take care and yes, do practice. आपको practice करनी है. Okay students? And okay, we will meet soon in tomorrow. Till then, take care and have a good day.